Welcome back, students. Here we are with a new lesson with respect to local government, that is devolution. Earlier, we have discussed the other kinds of transferring of power at local level, decentralization, normally decentralization, deconcentration, and now today we are going to discuss the third one, an important one, devolution. It's a kind of transfer of power at the local level. Let's start. Its definition and clarification of the term. It is one of the most fundamental um, change to the way decisions are made for local areas and how public services are funded. So, if we talk about England, it's a transfer of power and funding from national to local government. So, it is important because it ensures that decisions are made closer to the local people. यानी ग्रास रूट लेवल पर इख्तियार आ जाता है or communities or businessmen they affect. Devolution will provide greater freedom and flexibility at local level, meaning councils can work more effectively to improve public services for their area. सो इसका रिजल्ट क्या होता है मोर इफेक्टिव बेटर टारगेटेड पब्लिक सर्विसेज होती हैं ग्रेटर ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक प्राइवेट एंड कम्युनिटी लीडर्स इन लोकल एरियाज सो डेवोल्यूशन एक तरह से इख्तियार की मुंतकिली है और बड़े ज़बरदस्त इफेक्टिवली डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट्स में ये प्रैक्टिकल हो रही है इसकी और दिस इज यूजुअली डिवॉल्व अ सब नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट which then be said to enjoy autonomy and respect to the devolved functions, providing that nothing else inhibits the exercise of such autonomy. Excessive financial dependency और ये सारी चीज़ें तो devolution statutory delegation of power from central to sovereign states या सब national level पर ये सारा हो रहा होता है डेवोल्यूशन में डिवॉल्व पावर सब नेशनल अथॉरिटी की वो रिवर्सिबल भी होती हैं टेम्परेरी भी होती हैं अल्टीमेटली अपर हैंड सेंट्रल के गवर्नमेंट के पास ही रहता है इसी तरह से इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि but before Oxford Dictionary, I would like to explain you in simple words that devolution is the transfer of power from central government to the supranational, state, regional या local level पर होती है और devolution usually occurs through conventional statutes rather than through change in the country's constitution. और ये एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को भी पावर ट्रांसफ़र की जाती है और ये यानी रिड्यूस करती है फेडरल गवर्नमेंट पावर्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेट अदर स्टेट्स पर या लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र करने में उसकी पावर को रिड्यूस कर रही होती है और इसकी मदद से यानी थ्रू डेवोल्यूशन द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स गेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उनको जो कि एक अच्छे तरीके से उस पर बोझ नहीं बनती और काम स्मूथली हो रहा होता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये है कि डिवोल्यूशन इज द ट्रांसफर ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर टू ए लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ लोकल और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है आसान सी बात है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुताबिक डिवोल्यूशन इज मूविंग ऑफ पावर वही बात है यहाँ ट्रांसफर या मूविंग ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम ए मेन ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंट्रल से टू ए लोअर लेवल और फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट टू ए लोअर लेवल गवर्नमेंट यानी हम ये कह सकते हैं कि डेवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म whereby power but not legal sovereignty is distributed to national or regional or local institutions. अब आ जाते हैं इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्टोरिकली क्या था तो ये इसके बारे में ये मैं कुछ आपके लिए पढ़ देता हूँ कि थ्रू आउट हिस्ट्री देयर हैज़ बीन अ टेंडेंसी फॉर गवर्नमेंट्स टू सेंट्रलाइज पावर ड्यूरिंग द लेट 20th century. However, groups in both federal and unitary systems increasingly sought to reduce the power of central government by devolving power to local or regional governments. मिसाल के तौर पर supporters of states' rights in the US favored
diffusing power away from the capital towards states and local governments, यानी वो locals की तरफ इख्तियार जाए, यानी नीचे वाले लेवल पर जाए, ठीक है। This trend was also experienced throughout the world, or though perhaps the two most notable instances of devolution occurred, जो कि फ्रांस में हुए थे 1980 में और यूके में हुए थे 1990 में। तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग किस्म का हुआ और 70s में भी। इसके बाद हम देखते हैं स्कॉटलैंड यानी यूके में, उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि 70s में क्या हुआ यूके के हवाले से, कि मेजर पॉलिटिकल इशू यूके में, कि मैनी पीपल एंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स बिगैन डिमांडिंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर ओन अफेयर, यानी स्कॉटलैंड के और वेल्स के लोग यूके में अपने उस मुतालबात के हक में बहुत ऊपर आए और उन्होंने उसमें they यानी we can say that they trend a trend reflected in the rise of support for the Scottish national and played Cambrio parties of Wales। और 79 में क्या हुआ कि लेबर पार्टी बरतानिया की उसने रेफरेंडम करवाए उसकी इस पावर को डिवॉल्व करवाने के लिए, but was failed due to required proportion of the 2/5 of the electorate required for उसकी पैसेज करवाने में। 80s और 90s में द सपोर्ट फॉर डिवोल्यूशन इंक्रीज्ड इन बोथ स्कॉटलैंड और वेल्स में ज़्यादा हुई। तो 79 में क्या होता है कि लेबर गवर्नमेंट एक इंट्रोड्यूस करती है अनदर सेट ऑफ डिवोल्यूशन प्रपोजल को, एंड which were passed and Scottish Parliament and Wales Assembly were created and began to work in 1999। और बेलफास्ट एग्रीमेंट 1998 का granted Northern Ireland its own parliament, restoring the political autonomy। So there were also proposals to introduce regional assemblies in England। So ये तो इंग्लैंड की बात है। इसके अलावा और भी यानी in many other countries of the world, devolution was adopted to dampen regional, racial, ethnic या religious trends को, particularly in multi-ethnic societies such as श्रीलंका है, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो devolution also has occurred, फिनलैंड में भी हुआ, जहाँ पर गवर्नमेंट को autonomy दी गई to Swedish speaking population of island Iceland। इसी तरह इटली, in Italy several regions have been granted the special autonomy। ठीक होगी। ये तो थोड़ी सी इसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री थी। आगे इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो इसकी 3 बड़ी टाइप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन और लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, सॉरी लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन में ये होता है कि लिमिटेड पावर्स ट्रांसफ़र की जाती हैं रीजनल या लोकल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बहुत लिमिटेड सॉर्ट ऑफ पावर ट्रांसफ़र करती है। इसका मतलब ये होता है कि दिस मीन्स द डिवॉल्व्ड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड, the nature of administration, the ways in which laws should be implemented and passage of secondary legislation। ये तो है administrative devolution। और दूसरी है जी financial devolution। The financial devolution, the devolved administration has the ability to raise its own finances through taxes के जरिए अपने finances को खुद ही वो करते हैं। और most funds available come from central government in form of grants। सेंटर भी देती है grants की शक्ल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ वेरी लिटिल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस व्हाइल ग्रांटिंग टैक्सेशन पावर्स कन्वेज अ ग्रेट डील ऑफ ऑटोनॉमी। ये तो हो गया फाइनेंशियल डिवोल्यूशन। इसके बाद है जी लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन। लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन ये है कि द रीजनल या लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं हैज़ द पावर टू मेक प्राइमरी लेजिस्लेशन, खुद ही करती रहती हैं विद रिगार्ड टू इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल पीपल विद इन देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अपने उसकी हल्के में, अपने दायरे इख्तियार में वो खुद ही कानून साजी करती रहती हैं। आगे इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, उनकी तरफ भी चले जाते हैं। डिवोल्यूशन का जो पहला है कि डिवोल्यूशन रिप्रेजेंट द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कर्बिंग excessive concentration of power at the center, which is distinctive feature of the existing governance model and is inimical to the tenets of the good governance। यानी मतलब सेंटर पर ही सारा कुछ ना हो, बल्कि उसको तो वो उससे वो बादशाह बन जाते हैं और खुद साथ एब्सोल्यूटिज्म को प्रमोशन मिलती रहती है इस तरह से। इसी तरह से डिवोल्यूशन क्रिएट्स मैनी सब सेंटर्स
फ्रॉम विच पावर इज एक्सरसाइज, यानी बहुत से मुल्क के अंदर छोटे छोटे पावर के सब सेंटर बनते रहते हैं और इट reduces the amount of resources of national government which are directly controlled by central government and also reduces the exercise of dominance over all aspects of public affairs. ठीक होगी बात. Locality devolution leads to region and locality being able to articulate its own interest which might be different from those of the center. After devolution, the center will no longer monopolize public policy formulation, and new power centers will serve to promote or protect regional interests. ठीक है जी. और क्या होता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो आपके विल नाउ हैव टू शो ग्रेटर लॉयल्टी, बड़े बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी जील के साथ, बड़ी इंटरेस्ट के साथ अपनी लोकल कंस्टिट्यूंसीज में काम करते रहते हैं, न कि सेंट्रल पार्टी मशीनरी कैसा बने, बल्कि अपने लोकल पर तवज्जो ज़्यादा देते हैं और उसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहे होते हैं. And devolution uh, and devolution power is conferred to local representatives to manage affairs by the local community, any local representative. Therefore, single group cannot dominate the national scene and will increase chances and persons or groups of differing persuasion will occupy positions of power somewhere in the system. तो ये तो इसके बेनिफिट्स हैं और भी बहुत से आप बेनिफिट्स इसमें ऐड कर सकते हैं. So this was the lecture regarding devolution, the third one which was important with respect to the other two. So I hope you have understand the all. Thank you very much.